मैं शेखो आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो आए और सत्संग की शुरुआत करें। संगत जी, मैं पटियाले तो डॉक्टर गुरप्रीत सेखों जो कि फ्लोरिडा में है, और कैप्टन मनप्रीत सेखों गुरुजी जिनको पायलट आंटी बोलते थे, उनकी मम्मी बोल रही हूँ पटियाला से। आपको सबको गुरुजी के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और मैं आपको बहुत पुराना सत्संग सुनाती हूँ 79 और 80 का। 79 या 80 में मेरे मामा जी कांग्रेस पार्टी के मिनिस्टर थे। मैं उनको मिलने के लिए चंडीगढ़ चली गई। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ मैं अपने मामा जी ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਮਰਵੀਰ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਉਂਗੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ? 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ, सफेद पूरियां बाहां वाला कमीज पाया होया और सफेद पजामा, खुला पजामा, और पटे किते हुए, लैफ्ट साइड ते उन्हां दे चीर सीगा और कन्ना तक दे बाल, मत्थे दे विच टिक्का लग्या होया। मैं सोचा भी इन्हां नूं मिल के मैं की करूंगी, समझ ना आवे। काका मैनूं कह के आप अंदर चले गए और वो खड़े नगे जिन्हां नूं मैनूं कह के मिलो, इन्हां नूं मिलो। वो खड़े नगे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੋ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬੜੀ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜੂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫਲਾਣੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਚੌਲ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ। 79 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਗਈ। 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੋਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੀਬਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। 80 ਦੇ ਵਿੱਚ 15, 16 ਜਾਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਚ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਕੋ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 5-6 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਸੀ ਕੈਪਟਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਇਹਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਕਲ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਇਹ ਸੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੇਖੋ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਸੇਖੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠੇ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚ ਲੈ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਂਬਰ ਚ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ, ਅੰਕਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ।
ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਅੰਕਲ ਘਰੇ ਆਏ ਪਟਿਆਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਰਕ ਹੈ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਦਿਖੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਚੱਲੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ। 3-4 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਚੱਲੀਏ, ਜਲੰਧਰ ਚੱਲੀਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਨੋਂ ਸੁਣਾ ਦੂਸਰੇ ਕੰਨੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਖਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ, ਜਲੰਧਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਏ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਲੰਧਰ ਚੱਲ ਪਏ ਜੀ। ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਾਰ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਉਣਾ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਲੰਗਰ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ ਕਾਰ 'ਚ ਪੈਨ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਲਓ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਤੇ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੋਲ ਹੁੰਦੀ 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 ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਚਲੋ ਰਾਤ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਟਿਆਲੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤਾਂ ਖੜਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹਾਗੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਆਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਕਿੱਟੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸੇ ਉੱਠੀ, ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿੱਟੀ ਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿੱਟੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਆਈ ਵਾਸ ਸੋ ਹੈਪੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਗਈ, ਤੰਬੋਲਾ ਟਿਕਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਲਈ ਤੰਬੋਲਾ ਦੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਸੁਤਾ ਸਵਾਈ ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੇਲਣ ਲੱਗੇ, ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਮੇਰੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਮੇਰੀ, ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਮੇਰੀ, ਬਲੌਕਸ ਮੇਰੇ, ਹਾਊਸਿਸ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ। 3 ਹਾਊਸ ਅਸੀਂ ਖੇਲੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖੋ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੀ ਖਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਦਹੀਂ ਚੌਲ ਖਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੈ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਦੱਸ। ਮੈਂ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਆਂਟੀ ਉੱਠ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਸੁਣਾ ਤੰਬੋਲੇ ਵਾਲਾ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੰਬੋਲਾ ਖੇਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੰਬੋਲਾ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸਿਸ ਆਏ, ਲਾਈਨਾਂ ਆਈਆਂ, ਬਲੌਕਸ ਆਏ, 3 ਹਾਊਸ ਮੈਂ ਜਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ, ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਆਂਟੀ,
ਸਿੱਖ ਆਂਟੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਭ ਬਹੁਤ ਹੱਸੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅੰਕਲ ਆਪਦੇ ਸੇਖੋਂ ਅੰਕਲ ਮਾਨਸਾ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਰਵੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਇਕੱਲੀ। ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਮੇਰੇ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ 100 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਰੀਨ ਪਾਸ ਚਲੀ ਗਈ, ਰਾਜ ਸਰੀਨ ਪਾਸ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ डॉक्टर भारती बांसल पास जाओ, उतो जाके अपने सारे टेस्ट करवाओ और रिपोर्ट मेरे पास लेके आओ। उस तो बाद मैं थोड़ा ट्रीटमेंट शुरू करूंगी, हाले मैं तुहानू कुछ नहीं कह सकती। चली जी उन्होंने पर्ची लेके मैं भारती बांसल पास चली गई। भारती बांसल के जो मामा सी वो मेरे क्लास फेलो सी, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड सी। असी इकट्ठियां पढ़दियां भी रही, इकट्ठियां एक मंजे ते सौंदियां भी रही। जदों उन्होंने मैरिज होगी, उन्होंने घर भी साडे घर दे पास ही सी। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤਾਸ਼ ਵੀ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। तो भारती बांसल ने मैंने कहा, सारे मेरे सैंपल लेके मैंने कहते आंटी 3 या 4 दिनों में आयो, उस तक रिपोर्ट्स तैयार हो जाएंगी। पर मेरा दर्द उस तरह ही, किडनीज दे विच दर्द बहुत ज्यादा। चलो जी 4 दिन बाद मैं गई, भारती बांसल ने मैंने स्ट्रेचर ते पाया। मैंने कहते आंटी मैंने कहने नूं दिल तां करदा नहीं, पर आई एम सॉरी कि तुहानूं तां कैंसर हो गया। मेरे तो बिल्कुल लत्तां पैर कंबण लग गए, मैंने ये ना पता लगे मैं की करा। उन्होंने तो मैं पर्ची ली, लेके पर्ची में राज सरीन के पास चली गई। डॉक्टर सरीन कहे मिसेस सेखो थोड़े तो रिजल्ट ठीक नहीं आए, तुहानूं तो कैंसर हो गया। मैं डॉक्टर साहब कितना हो गया? कहते ये तो मैं कुछ कह नहीं सकती, हाले होर टेस्ट करने बाकी है। ते मैं कहा डॉक्टर साहब मैं तो 3 महीने उदों भी तुहाडे कोल चैकअप करा के गई, उदों मैनूं कोई तकलीफ नहीं सी, आ हुण एकदम किवें हो गया? कहते चलो घबराओ नहीं, ठीक हो जाएगा, आप ऑपरेशन कर देंगे। मैं आके जो अपने बेड ते लेट गई, इतने मेरे हसबैंड उतो मानसा तो अपने फार्म तो वापस आए। मैनूं कहते तुसीं लेटे होए हो, पानी भी नहीं उन्होंने पीता। मैं कहा मेरे तो किडनीज दे विच बहुत दर्द हो रही है, मेरा तो बहुत बुरा हाल है, तो मैंने तो डॉक्टर सरीन ने दस्सिया कि तुहानूं तो कैंसर हो गया। अंकल कहते ओहो कौन किसनूं संभालूगा, मैं हार्ट पेशेंट हां, तुसीं मैनूं संभालदे सी, हुण तुहानूं कैंसर हो गया, तुहानूं कौन संभालूगा? चलो जी अंकल आके दूसरे बेडरूम दे विच लेट गए। मैं अपने बेडरूम च उत्थे आके उत्थे सोफा चेयर्स पईयां सी, मैं बैठ गई। मैं इन्हां नूं कहना कि मैं प्रीति जी नूं फोन करिए आप अमेरिका। कहंदे वो इन्नी दूर बैठी की करूगी। चलो जी बहुत टेंशन सी माइंड दे उपर। बाई चांस ही प्रीति जी दा फोन आ गया उत्थों अमेरिका तो। उस टाइम वो शिकागो दे विच सी। कहंदे मामा की हाल है तुहाडा? मैं बेटा ठीक है। कहंदे नहीं तुसीं ढिल्ले जे बोले, तुहानूं कोई तकलीफ हैगी है? मैं बेटा मैं टेस्ट करवा के हटी है, डॉक्टर ने कहा भी तुहानूं कैंसर हो गया। प्रीति जी मैंने कहा मामा हो गया तो होगा, दुनिया में हो जाता, तुहानूं भी हो गया, इन्नी केड़ी गल है? ये कोई बीमारी कल्याण तो नहीं लगी, सारे संसार में हो रही है, बहुत लोग पाए कैंसर में। चलो तुसीं फोन बंद करो, मैं तुहानूं अद्धे घंटे फिर दोबारा फोन कर दी। प्रीति जी दा फोन आया, मैनूं कहंदे मामा थोड़ी अपॉइंटमेंट हो गई, फलानी तरीक नूं तुसीं दिल्ली पहुंचना है ते डॉक्टर एस के दास उन्हां पास चले जाए। मैं अपने हस्बैंड को कहा, मैं आप पैकिंग करिए चलिए उत्थे। कहंदे नहीं मैं नहीं जांदा, पहले मैं गुरु जी पास जाऊंगा, उन्हां तो आज्ञा लूंगा, फिर आप दिल्ली चला। चलो जी ऐसे गुरु जी पास नेक्स्ट डे चले गए। गुरु जी उत्थे नीचे बैठे सी। मैनूं कहंदे आंटी ऐ तुरी आउणी है, की हो गया तैनूं? मैं कहा गुरु जी मैनूं तां कैंसर हो गया। मैनूं कहंदे लै हो गया इहनूं कैंसर? कौन कहंदा तैनूं कैंसर हो गया? तैनूं कोई कैंसर नहीं है। मैं कहा गुरु जी मैं तां दिल्ली जा रही हूं टेस्ट करवाउण वास्ते राजीव गांधी हॉस्पिटल। कहंदे जा जाके आ सैटरडे नूं आके मैनूं दस भी तेरे रिजल्ट किवें आए। लो जी मैं ते अंकल दिल्ली चले गए। जाके उत्थे 1-2 रातां रहे, सारे टेस्ट करवाए ते रिजल्ट सानूं सैटरडे नूं मिलना सी। इसके मैं
फिंगर्स क्रॉस करके बैठे बस ओम नमः शिवाय का पाठ करेंगे। उस टाइम गुरु जी सदस्य है नहीं कहते, खाली ओम नमः शिवाय करते। मैं बैठी पाठ कर दी रही, फिंगर्स क्रॉस रखिया। डॉक्टर दास ने मैंने आवाज मारी, पुष्पी से जब मैं गई फिर भी मेरे फिंगर्स क्रॉस। डॉक्टर कहते पुष्पी कौन बोलता तेरा को कैंसर है, तू तो बिल्कुल ठीक है, जो गो सू योर डॉक्टर इन द कोर्ट। मैं कहा डॉक्टर साहब बस इतना ही बहुत है कि मेरा रिजल्ट ठीक आ गया, मैं कोई केस नहीं करूंगी, थैंक्स टू गुरु जी ने मेरे को बचा दिया। पर गुरु जी का हुक्म था कि सैटरडे को आके मेरे को बताओ। सैटरडे को हम लोग संगत जी फिर वापस चले गए गुरु जी को मिलने के लिए। दूरों देख के मेरे को मैंने कहते हाँ आंटी की बने फिर किमें आया रिजल्ट। मैं गुरु जी मैंने तो कोई कैंसर नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक होगी। कहते मैं तेन कहा नहीं सी तेन कोई कैंसर नहीं है। उस तो बाद मैं गुरु जी एक रिजल्ट हाले रह गया, सोमवार में मिलना। कहते जाओ कल जाओ जाके अपना टेस्ट ले रिजल्ट लेके। फिर मैं इतने अंकल वापस गए जी, उम्मीद करी मैं फिर ओम नमः शिवाय का पाठ कर दी रही। फिर डॉक्टर दास ने मैंने आवाज मारी गई, कहते नहीं तेरे को टेस्ट नहीं हुआ, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है। पर मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि डॉक्टर के ऊपर केस करो, उसने गलत रिजल्ट दिया। चलो जी महाराज का थैंक्स करने के लिए हम लोग जैसे उनकी आज्ञा थी फिर गई मैं वापस जाके गुरु जी हाँ आंटी फिर की बने। मैं महाराज मैं तो बिल्कुल ठीक है, सारे रिजल्ट ठीक है। कहते कि तेन मैं दसिया तेन कोई कैंसर नहीं, तेन कैंसर नहीं हुंदा। हुण जदे कोई तकलीफ हुंदी है ना, मैं उसी टाइम कहनी कि मैंने कैंसर था, महाराज ने मैंने बख्शता, मैंने कैंसर नहीं हो सकता। सो बाकी कोई और बीमारी हो जाए मैं कुछ कह नहीं सकती, पर महाराज की बड़ी कृपा है। महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मैंने कैंसर की नामराज बीमारी से बचाया। जय गुरु जी। एक दफा फिर होया, बहुत देर हो गई ऐसी गुरु जी के दर्शन वास्ते जाइए, चंडीगढ़ नहीं मिलते सी, फिर गए बहुत बारी गए पर गुरु जी के दर्शन नहीं हुए। चलो मैं अंकल अपने कहते कहते चलो आप चंडीगढ़ चलते हैं, रंधावा प्रितपाल रंधावा मेरा फ्रेंड है, आप उन्होंने पूछते हो गुरु जी बहुत सेवा करते सी। कहते ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਲੰਧਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਕਰਨਲ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਸ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਾਕੀ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਮਿਸਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗੋਟੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋਟੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਜੂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫੁੱਟਮੈਟਸ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੋਟੀ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿਮਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਮੋਵ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਚਾਰ ਚਾਰ ਉਂਗਲਾਂ ਵਾਈਟ ਗੋਲਡਨ ਮੋਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ ਵੀ ਕੱਪੜੇ 1 ਘੰਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਉਣੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂਡਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਗਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਦੇਖਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਥਰੂ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੇਟ ਕੇ ਰੱਖ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸੀ ਥਰੂ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀ। जय गुरु जी। मैं कर्नल तूरन कल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए और गुरु जी की ब्लेसिंग शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत मैनू जानती है तूर अंकल। My son had lost his hearing in 1976 when he was just 3 years old. All systems of medicine were tried, they gave up. Then somebody told me that the ghosts and evil spirits, they are very powerful and they will cure your child. मैं उत्थे भी गया, कुछ नहीं मिला. Ultimately, when I retired in 1996 from the army,
मैं गुरु ग्रंथ साहब मत्था टेकिया, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा. Till today, I was in search of many saintly people with the purpose that they should get a cure for my child. मैं मांगदा ही गया, कुछ नहीं मिला. फिर जब मैं 96 जब रिटायर होया थे, गुरु ग्रंथ से मत्था टेकिया, 3 दिन के बाद a relation of mine sends me a message that Guruji wants to see me. I was staying in sector 4 Panchkula. Guruji was staying with Jan Ahuja in sector 2. मैं और मेरी वाइफ गुरुजी को ले जन अहूजा ਦੇ ਘਰ ਸੈਕਟਰ 2 ਪੰਚਕੂਲਾ ਚਲੇ ਗਏ और ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ और वापस आए. 10 दिन के बाद गुरु जी ने मैनू और मेरी वाइफ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ. ਉੱਥੇ 6-7 ਕਪਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਮਾਈ ਵਾਈਫ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਫੌਂਡ ਆਫ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾੜੀਜ਼. ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਵੇਚੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਦੱਸਿਆ. I never told my wife the exact amount because knowing the ladies' habit that for them diamonds are forever, jewelries are forever. They like to spend the money, so I didn't conceal the exact money. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ. ਐਂ ਕਰ, ਇਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ डाल दिया कर, 10 दिन पाई और कल्याण and he will get his hearing 20% back. ये गुरु जी कहता. फिर जब असी उठन लगे तो गुरु जी had when he had just come from a walk, गुरु जी ने अपने जोड़े पाए हुए सीगे. उन्होंने अपने चरणों ते जोड़े कड्डे और आंटी नू देते. आंटी ये तू अपने को रख, ये तेरे वास्ते हमेशा रहेंगे और लुको के लेके जाए. ਅਸੀਂ ਜੋੜੇ ਲੈ ਲਏ. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਪਾਇਆ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਦੁਖ ਰਹੀ ਹੈ. I took him to the hospital. They carried out his audiometry. ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ audiometry ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੀ. and ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ. ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੂਲ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ. I asked him what has happened. Kenda Papa, the noise was very loud. Mainu chakkar aa gaya. He heard this loud noise after 25 years, a quarter of a century, when all people in the world had given up that there's no cure for your child. I was surprised myself. और मैं believe भी नहीं किया. I thought कि गुरु जी ने मैनू hypnotize कर. जिस तरह से कार आए, कार तो उतरे, बेटा पहला उतर गया, मैं बाद उतर गया. When he was at a distance of about 10 feet, he was in the front, I was behind. I called out his name. He looked back and said, "Yes, Papa." That was a confirmation to me that his hearing has been restored. फिर मैं गुरु जी शान हो गया. कहता फिर 20% हेयरिंग हो गई है. मैं कहा हाँ जी. गुरु जी थैंक यू एवर सो मच. थोड़ी कृपा है, थोड़ी मेहर है. कहते अज मैं तेनू रब दिखा देगा. मैं कहा गुरु जी मेरे वास्ते तुसी हो रब. गुरु ग्रंथ साहब कहता है गुरु इज गॉड एंड गॉड इज गुरु. ये गुरु जी की मेहर सी, बख्शिश सी, ब्लेसिंग सी, कृपा सी, रहमत सी. I'm so ever grateful to Guruji for all this. ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਈ. Every day we used to go to Jan Ahuja's house. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ. We really enjoyed it. ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ.
ਪਹਿਲਾਂ ਬਥੇਰੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਵਿਸਕੀ ਪੀਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਉਤਰ ਗਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, I mean I can talk to you for hours together. ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ we used to go to Guru Ji every New Year also. ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, he says ਕੱਲ ਤੂੰ New Year you were so active partner of our army group, ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ 400-500 ਲੋਕ, ਤੂੰ New Year ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। So my wife said this year we must attend our New Year celebration with the friends and we won't go to Guru. 31st morning, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਮਚ ਦੀ ਟੀ ਲੀਵਸ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਲੀਵਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਮਚ ਨੂੰ ਚਿਪ ਗਿਆ and the hood of a snake appeared in the form of tea leaves. फिर दूजा चम्मच पाया, फिर होड। Then she told me, he said, this is what I'm seeing. मैं कहा तू केड़ी बेमा च पै गई, I don't believe it, तू मैनू दिखा। मेरी वाइफ ने, मैं कहा तू बड़ा टेबल, नॉट टी स्पून, टेबल स्पून दे, ओदी चाह पत्ती पा मेरे सामने पा। She took a tablespoon, चाह पत्ती पाई, threw the tea leaves into the boiling water, and yes, again, the tea leaves, the powder sea, it again gave the look of a cobra snake. Guruji is Shivji's Bhagat. That was an indication to me we will not celebrate the New Year with the friends here in Command Club. We have to go to Guruji. So 31st ਨੂੰ ਅਸੀਂ Guruji ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। Empire State ਦੇ ਵਿੱਚ the balloons were there, everyone was there. They round about 11:30 ਵਜੇ the people started dancing. ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਡਾਂਸ, ਇਹ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਲੱਕ ਦੁਖਦਾ ਹੈਗਾ, I'm having a terrible pain. He says ਆਂਟੀ ਡਾਂਸ। ਆਂਟੀ ਉੱਠੀ, ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਡਨਾਈਟ ਆਈ, ਲਾਈਟ ਆਫ ਹੋਈ और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਈਟ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ। Believe it, a pain of 25 years of backache completely disappeared once for all. ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ, I would say ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ created a situation where we had to come, we had no choice. ਫਿਰ my heart beat ਕਈ ਦਫਾ used to go to very fast. Once it went to 108 beats per minute, what they call is a tachycardia. मैं दिल्ली ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ we'll have to carry out the surgery. So before admission ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ Empire State ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ। I came early. ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ, ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, he tell Tur uncle nothing is wrong with his heart. I told that messenger, please tell Guruji, mera heart is beating very fast. Anyway, मैं बैठा रहा, मैं कहा अगले दिन तो होना ही है, I must take Guruji's blessing before this major operation. Guruji आए, उस दिन गुरुजी प्रसाद समोसे बन रहे। मैं कहा my God, मैं कहा समोसे किसी बंदे ਨੂੰ मारना होए और हार्ट का प्रॉब्लम होए, वो तो मर जाऊं। Anyway, मैं सब तो 5-6 बंदे जब रह गए सीगे, जब देखा कि गुरु जी को समोसे खत्म हो गए, मैं क्या हॉल लकी आया, समोसे भी नहीं मिल गए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी हो गई। जिस तरह मैं गुरु जी को मत्था टेकिया, गुरु जी ने अपना सज्जा हाथ हवा च मारिया, 5 समोसे मैंने देते ही से, अंकल तू खा, तेरा हार्ट कल्याण ठीक हो। मैं खाधे 5 समोसे, काफी टाइम लग गया। फिर मैनू दोबारा बुलाते, इस टाइम उन्होंने खब्बे हाथ हवा च मारिया and gave me 2 more samosas. My God, I said, if I eat this now, मैं तो उल्टी आ जाएगी। मैं मुंह च, अच्छा गुरु ये भी कहते होंगे सीगे, जिहड़ा इत्थे खाएगा वो दवाई लगेगी, जिहड़ा घर च जाके खाएगा प्रसाद वो मिठाई लगेगी।
मैं पै गया सी। Anyway, I had that. करीब रात के 12:30 बजे जब संगत जान लगी ते मैनू गुरु ने बुलाया, कहंदा की हाल है तेरा, कितनी हार्ट बीट। I used to feel my heartbeat. It was 80 beats per minute. ये कौन कर सकता, ये रब भी कर सकता बिना दवाई। It was blessings. ते कहंदे हुण कल नूं अंकल तू जाएगा कल हस्पताल। I kept slightly quiet for the moment because I had taken an appointment with doctors. Doctors ने भगवाना नहीं चाहता सी। कहंदा तू बेमी है, तू शकी है, तू जाएगा। मैं कहा गुरु जी जो थोड़ा हुक्म ओदा पालन होएगा। इसे नहीं तू फौजी है, तू शकी है, तू जरूर जाएगा। मैं कहा गुरु जी जो थोड़ा हुक्म, चल फिर मारे चक्कर, सैर करे अस्पताल दी, दिखा दे डॉक्टर, तेरी अपॉइंटमेंट है, सो दैट यू लिव अप टू योर अपॉइंटमेंट। अगले दिन मैं डॉक्टर को गया, उन्हें मेरे बीपी लिया, गुस्से से उन्हें कहते ठीक नहीं है, दूजा बीपी इंस्ट्रूमेंट है, दूजा बीपी लिया। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ I will have to carry out your echo ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ echo room ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਤੇ 7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ 4 ਡਾਕਟਰ ਚਿੱਟੇ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਗੜਬੜ ਹੈ। These must be resident doctors and doctors want to teach them. Not only that, मेरी अख भी फड़कन लगी। अपने च बहम है कि अख फड़कन लग जाए, समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन। 2 महीने पहले गुरु मिस्टर शर्मा गुरु जी चरण दबारे थे। गुरु जी ने मैंने भी इशारा दिता कि तू भी मेरी एक लत्त दे दवा। मैं चला गया ते शर्मा साहब गुरु जी नूं कहंदे गुरु जी कदे कदे काली बिल्ली भी मेरा रास्ता क्रॉस कर जाती है, गल ठीक नहीं है। गुरु जी कहंदे तू हरिओम कह दे कर, वाहिगुरु कह दे कर, तेरी काली बिल्ली बड़ी कि वाहिगुरु बड़ा। फिर दूसरे दफा कहता गुरु जी मेरी अख भी किवें फड़कन लग जाती है। दिस टाइम गुरु जी लुक्ड एट मी, अ वेरी डिलिबरेट लुक। कहते तू शुक्र कर रब दा कि समथिंग वाज रॉन्ग विद योर बॉडी। जद तेरी अख फड़कन लगी, ये तेरे जिस्म के ऊपर रब ने एको प्रेशर किया कि जिहड़ी कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी है वो भी खत्म हो। This thought came to me when I was lying in the bed in the hospital and my echo was on. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ TMT ਕਰਨਾ। TMT ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਟ੍ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ, ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ TMT ਕੀਤੀ। 8 मिनट के बाद TMT बंद कर दी। मैं टेक्नीशियन ने पूछा, मैं कहा कि समथिंग इज ऑल राइट, ऑल इज वेल। कहता जी ये तो डॉक्टर साहब ही दसणगे। लो मैंने होर भी मैं पै गया कि समथिंग इज रॉन्ग। मैं डॉक्टर को गया आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर। ही सेड Colonel Toor is your name, this is your address, this is your mobile number। मैं कहा yes। He says Colonel you are not 100% fit। After a pause of 1 minute he looks into me once again, Colonel you are 200% fit। So I was not admitted into hospital। शाम में मैं गुरु जी को ले आया एम्पायर स्टेट। कहते की होया? मैं कहा गुरु जी I am 200% fit as per the doctors। कहते देखिया फिर तेरा गुरु, उन्होंने पैसे रखा लेने सी और छाती फाड़ देने सी। मैं कहा गुरु जी थैंक यू एवर सो मच, ये थोड़ी मेहर है और थोड़ी कृपा है। I can keep on talking to you for hours together। मैं गुरु जी को बहुत काफी चिर रहना सीगा। एंड गुरु जी ने मैंने बड़े मंदिर एम्पायर स्टेट करीब 150 सत्संग कराए होंगे। एंड आई यूज्ड टू टेल गुरु जी मैं वही सत्संग करना जो पहले भी बोल चुका है। इसे जब तेरा गुरु के अंदर सत्संग करता तेरा की बिगड़ता, वही बोलना चाहता। The next is regarding my sister's son। My sister is a doctor। Her son was studying in IIT Kharagpur। घर आया, बुखार ही ना उतरे। They carried out all the tests and ultimately it was revealed by Tata Memorial that the son is down with leukemia, that is blood cancer। My sister also got worried। उन्हें छुट्टी ले ली और कमरे दे विच बैठ के
गुरु जी की फोटोग्राफ अपनी गोदी च रख ली along with Guru Nanak's photograph. And अगले दिन मैं 2 दिन के बाद मैं आ गया ते गुरु जी को सीधा ही गुरु जी को पहला गया ते गुरु जी मैंने कहते तेरी भैन खुश है मैं कहा जी खुशी होनी है कहते मैं ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ I was surprised because ਇਹ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੋਣੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਨਵਰਟ I rang up my sister in the morning मैं क्या ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ her son was down with blood cancer leukemia and the slides were once again sent to reconfirm it was leukemia फिर ਉੱਥੇ ਉਹੀ laboratories Dr. Lal's laboratory जगह जगह किडनी laboratory सब भेजिया and they said no he does not have cancer ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੁਕੀਮੀਆ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਕੋੜਾ ਜਾ ਗਿਆ and in those days my sister gave lidomycin to my her son और फोड़ा भी ठीक हो गया और ल्यूकीमिया भी ठीक हो गया ये कौन कर सकता है ये रब भी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता और गुरु जी देखो कुछ मांगते भी नहीं कुछ भी नहीं करते गुरु जी कहते पाठ करा करो दैट्स ऑल ही सेज और गुरु जी कहते मेरे तो मंगया ना करो मैनू मन्या करो माय नीस childless for so many years based in United States एक दिन इंडिया आई और शाम को गुरु जी को लगाई she was feeling shy looking for an opportunity कि जब गुरु जी कल्ले होंगे तो I will put my problems away तो गुरु जी कहते मेरे तो मंगे ना करो so she didn't have an opportunity to ask जैसे उन्हें गुरु जी ने मत्था टेकिया ते कहंदे बेटी ने आंटी तेरा काम अक्टूबर च हो जाएगा now she was guessing केड़ा काम कोई हस्बैंड दी प्रमोशन या और कोई काम and good enough she conceived and she was blessed with a beautiful boy एक चीज मैं देखी है गुरु जी ने जिन्होंने भी ब्लेस किया है for children the girls are so beautiful the boys are so handsome and intelligent और उन्होंने आगे जब नौकरियां में मिली हैं they had turned out to be a very nice children as you would desire it ये है गुरु जी की कृपा एक दिन गुरु जी मैंने कहते कि तू चंडीगढ़ 22 सेक्टर च जा उथे एक बंदा रेड़ी दी उपर रखड़ियां बेच रहा मैं क्या गुरु जी की नाम है कहते तू जा ते तेन अपना भी पता लगे so a day before the Raki I went to the 22 sector ready market कई रेडियां के ऊपर रखने बिजनेस एक रेडी पर काफी सारे गर्ल्स होते हैं and there in the middle of the Iraqis I saw Guruji's photograph मैं कहा यही बंदा है फिर ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਆਸਕਡ ਵਨ ਆਫ ਦ ਗਰਲਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੀੜ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਰੇੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਰੱਖਣੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਰੇੜੀ 'ਚ ਜੋ ਰੱਖੜੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਪੈਣ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कुछ ਇਹਦੇ ਰੇੜੀ 'ਚ ਇਹਦੀ ਰੱਖੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚਮਕਾਰ ਹੈ that is why there is so much of rush ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆ ਗੱਲ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੈਂਸਰ ਟਿਊਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਟ ਵਾਸ ਕੈਂਸਰ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਸੋ ਸ਼ੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨੂੰ ਬਿਫੋਰ ਸਨਸੈਟ ਪਾਣੀ 10 ਤੋਂ 20 ਪਾਣੀ ਚ ਕਰ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 10 ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਫਾੜ ਕੇ ਦਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿਆ ਕਰ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਿਲਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰ ਔਰ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਛਿਲਕਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 1-2 ਮਿੰਟ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਿੱਟ ਦਿਆ ਕਰ 10 ਦਿਨ ਕਰੀ ਕਲਿਆਣ As a matter of fact, when the child was still in the hospital, he had gone into coma. And doctor ਕਹਿੰਦੇ the large ਨੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ. That's how mother took her to the house
when he was unconscious. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ. He got back his unconscious, he came out of the coma, and that test was again carried out. There was no trace of a tumor at all in his head. It just melted away like a butter, melted like a butter. ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ. Then I can, I hope I'm not wasting your time, but since I've been asked over it, I must tell you all about this. ਇੱਕ ਦਫਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ जी अंकल प्लीज कंटिन्यू. ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿਓ. ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ जय गुरु जी. ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਆ. then I asked my munim over there कि कहते हाँ जी इतने गुरु भी जी एक कोई बंदा आया था और वो वहां मुंजी के खेत में जब मैं जाता था वो भाग जाता था. मेरे घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚੇਨ ਲੌਕਟ ਹੈਗਾ. so this munim of mine he saw that locket. कहते जी ये वही बंदा, उसका मुंह तो मैंने देखा नहीं पर वो गंजा था गोरा सा था. फिर मैं गुरु जी दसिया एक दफा नेक्स्ट टाइम, गुरु जी मेरे आए सी यू आर राइट. और उसी खेत दे विच जिहड़ी मुंजी ठीक नहीं हुंदी सीगी वो ठीक होने लगी. And these people thought that it was thief, but no, it was Guruji's disguise to bless my farm. Another thing which I must tell you is my son-in-law was diagnosed with thyroid cancer. मैं गया डॉक्टर पांडव कोले. He is the head of the internal medicines in the AIMS. मैं कहा पांडव साहब ये गल है. कहते साडा डॉक्टर जिहड़ा थायराइड ऑपरेशन कैंसर करदा ही इज ऑन छुट्टी, but Dr. Shashibal from Sloan Keating's Cancer Research Institute from the United States, he's here. He's a friend of mine, and I request him if you could kindly see your son. Only appointment fix करती अगले दिन. So he said there's no, he has to be operated upon. And when he was to be operated upon, Dr. Shashibal for some emergency call Bombay चले गए, and there was a time lapse of 4 to 5 days. Guruji ने मैनू अपनी flat Satbari दिलवाया सीगा. So we used to stay there. In the evening we had nothing to do. शाम ਨੂੰ ਅਸੀਂ चल ਜਾਂਦੇ ਸੀ बड़े मंदिर. एक दिन मनोज सूद अंकल मैनू कहते कि तूर अंकल ने तूर आंटी अज तुसी भोग लगाना है शाम. किचन च गए, थाली च भोग लियाते जो भी लंगर सीगा. एज वी वर टेकिंग द लंगर टू द गुरु जी स्वरूप, ते सूद कहंदा मैनू भी हाथ तो अंकल तुसी भी हाथ लगा लो, और मेरे सन लो कहंदा तू भी हाथ लगा ले. ही नेवर न्यू फॉर व्हाट पर्पस वी आर हियर. भोग लगाया, 10 मिनट बाद चले गए, लंगर खाता. जब लंगर खा के असीं बाहर आए, वो जी शिव जी की मूर्ति है in between the Guruji Samadhi and the Bada Mandir, the lips were moving, the eyes were moving left and right. So my son-in-law tells me, he says, Mama, this is what am I seeing? Am I seeing something correct? My wife said, yes, you're 100% correct. I am seeing the same thing. The lips are moving, the eyes are moving. In the meantime, संगत काफी आ गई, इकट्ठे हो गए. उन्होंने मोबाइल पे तस्वीरें भी ले लिया. And this is on the internet also. At that time, my son never believed in Guruji. उदों देख के कहता, today and Mama, today I believe that your Guru is God. Had he not believed that Guru is God, his operation wouldn't have been very successful. जब operation होया, it was successful. He was on deputation to the Commonwealth. He went back to London, and when he was in London, the health organization, he said, we would like to have his diseased organ here. मैं भाई दौड़ करना करते मैंने कोई एप्लीकेशन ना मिले, कुछ ना मिले. I went to Air India International. He said, sir, you have to take permission. Then only we can send organ, disease organ outside. मेरे पैसे कितने? कहते for a disease organ एक सन 1 लाख रुपया
from the Indira Gandhi Airport to Heathrow Airport in London. Good enough. In the meantime, a friend of my daughter came. Before that, Dr. Shashibal has said कि तुसी 5 लाख रुपया जमा करा दो. Now it happened to be on Saturday. The banks on that day the bank was closed. I said take my check and we don't accept check. यहाँ तो bank draft दो. A friend of my daughter came. अपने आप ही he says मेरी बेटी ने कहते आला 5 लाख. कहती what for? He said मैंने पता तेन लोड पेगी. He said no, my father will manage it. My husband is in London. My father will manage it. Anyway, I managed to get the money. मैं करा को देते पैसे कर को देते. Now the organ had to go to UK. It would take a lot of time. Believe it. A lady came and tells my daughter, the organ of your diseased organ of the thyroid of your husband will go to Heathrow Airport. It will go by the kind courtesy of Air International. You will not pay 1 rupee. Only thing you have to insure is from the hospital. I will manage to help take out the organ from here, put to the aircraft. And over there, it has to be received by the health authorities. And it was done. देखो गुरुजी किन्नी कृपा कोई एप्लीकेशन दी थी कुछ नहीं अपने आप नहीं as this thing was programmed ए गुरुजी कृपा सी ये उन्होंने दी and you know बाकी सारे social events वगैरह मैं छाड़ते and I used to look forward for satsang in Panchkula और चंडीगढ़ और गुरुजी ने जगह जगह मैंने सत्संग ते भेजे जोधपुर जलंधर फगवाड़े किते किते and I used to tell गुरुजी मैं कहा गुरुजी लोगों तो मैं जानता नहीं इसे तेन जान दी लोड़ हैगी तू पहुंचा कर ये थी गुरुजी दी कृपा. Now I would like to say something. All these years I was in search of a Mahapurush, of a person who could cure my child. मैं मंगदा सी कि मेरे कोई बच्चा कोई बंदा दे ते मेरे बच्चे क्यों. Then I realized कि गुरुजी कहते मंगया ना करो मन्या करो. So all that my fertile years of 25 years had no meaning because I went with the purpose of mangna. मंगदे कुछ नहीं मिला. जे गुरुजी बेडरूम बैठे से अपने आप ही गुरुजी क्या थी तेरे काके नु नहीं सुनता मैं कहने. And then he told me the cure. जे मैं गुरुजी ने अपने आप ही दस दिंदा शायद he may not have been cured. So गुरुजी नु मन्नो और मंगो ना. Another thing which I've seen in this temple is that when you go to the Buddha temple, when you climb the 5 steps, do you know why 5 steps? Why no 4 steps? Why not 6 steps? Those 5 steps is to awaken you. These are the 5 steps are anger, ego, pride, lust, and greed. These are a reminder. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਦਾ ਹੈ. Then you go down the dining hall and there are 12 steps. And 12 steps, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा ही तेरा. These are 12 words and these are 12 steps. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਹੇਠ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ 4 ਬੰਦੇ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ. ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਪੀਣਾ. ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ then you go out of the dining hall and you go up. When you go up, there are 9 steps. गुरु कहते होंगे सी 9 दरवाजे बंद करो 10वां दरवाजा खुल जाएगा. And those 9 steps are that whatever bad things अपने जेडे कर्म खराब होंगे हैगे, those are the 9 openings in a human body. That is to say 2 eyes, 2 nostrils, 2 ears, 1 mouth and 2 down the road. 9 दरवाजे बंद करो 10वां दरवाजा खुल जाएगा. जो 10वां दरवाजा वो है your wishes will be fulfilled. This is the only temple which I know gives you the entire philosophy of spirituality. और गुरु जी ने देखो जेडे पत्थर भी थोनू दसदे हैगे ऐ करना है ते जेडे महापुरुष ने जेड़ा मंदिर बनाया है, you can well imagine his power, his greatness. And I would say
that to get all this, you got to have complete faith, trust, and total surrender with Guruji. I can spend hours writing to and talking to about the miracles about Guruji, which is performed. I can sing his praises all day long, because for me, he is God, who is there for me, my family, and the Sangat, always smiling and covering us with his protective mantle. If there's any heaven on this earth, it is but here. जे कोई सस दुनिया में स्वर्ग है, एक गुरु इच्छा दी मौज, यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग। जय गुरु। बाबा अंकल प्लीज आए और गुरु जी के सत्संग शेयर करें। हेलो, जय गुरु जी, कैन यू हियर मी? जय जय गुरु जी अंकल। यस अंकल। हाँ जी। मई 1995 की बात है, 1995 की, कि हम को गुरु जी के बारे में तो मार्च में पता चला था 95 में, बट मई 95 में हम गुरु जी के पास ग्रेटर कैलाश पहुंचे, मी एंड माय मदर। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो हम गए, हमको इंट्रोड्यूस कराया गया गुरु जी के से। तो गुरु जी ने उस दिन थोड़ी देर बैठे, गुरु जी ने कहा जाओ इस दिन आना इतने बजे। तो हम नए थे, हमको पता नहीं था, तो लोगों से पूछा, उन्होंने कहा उस दिन उतने बजे तो आना ही है आपने, बट बीच में भी आप आ सकते हो। व्हेन वी वर गोइंग होम, तो आई टोल्ड माय मदर कि मम्मी हम बिल्कुल ना ठीक जगह आए हैं। एंड एवरी डे इन द इवनिंग हम ग्रेटर कैलाश पहुंच जाते थे। कुछ ऐसी खींच थी कि गुरुजी की, कि सब कुछ छोड़ के शाम को हम ग्रेटर कैलाश चले जाते थे गुरुजी के पास। जिस दिन गुरुजी ने बोला था इतने बजे आना, उस दिन हम पहुंचे, एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचे, 3-4 घंटे बैठे। तो गुरुजी ने उठाया हमको एंड मेरी मदर को कहते हैं, आंटी ये लेटेस्ट ट्राई नहीं आएगा, 100% क्योर है, हाजरियां परो। और मेरे को देख के कहते हैं कि मम्मी ने 10-15 दिन लेके आ, मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तो व्हेन वी वर गोइंग होम, तो मम्मी कहती हैं बाबा गुरुजी कहते तो ठीक है, बिकॉज मैं वहां पे बैठ के यही सोच रही थी कि यहाँ पे भी ट्राई करके देख लेती हूँ ठीक होती हूँ कि नहीं। 2-3 दिन ही गुजरे, तो गुरुजी ने हमको इजाजत दी और बोला कि कल 50 रुपए के पान के पत्ते, चांदी का एक ओमकार और एक तांबे का लोटा लेके आना। हमने गुरुजी को कुछ नहीं बताया था कि मम्मी को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो नेक्स्ट डे जब पहुंचे तो गुरुजी ने वो तीनों चीजें ब्लेस करी। मम्मी को बोला कि चांदी का एक ओमकार इस दिन पहनना है, तांबे का लोटे का जैसे सबको पता है रात को उसमें पानी भर के सुबह पीना है, एंड 50 रुपए के पान के पत्ते जो थे, गुरुजी ने कहा इनको 3 में डिवाइड कर दो और रोज शाम को 1 घंटा दोनों घुटनों में वो बांधने हैं फॉर 3 डेज, एंड उसके बाद उसको खोल के उसको जल परवाह कर देना। हमने ये किया। मम्मी को घुटनों की प्रॉब्लम थी, वो नीचे नहीं बैठ सकती थी, उनकी घुटनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और बाकी जो और चीजें थी वो भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो गई, जो मेडिकल प्रॉब्लम्स थी। ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज सफरिंग फ्रॉम 2 थिंग्स। एक तो मेरा आउट ऑफ 365 डेज इन अ ईयर, फॉर 360 डेज मेरा गला खराब रहता था और मेरा कुछ जुकाम रहता था। एंड डॉक्टर के पास मैं जाता था, इतनी दवाइयाँ ली दैट आफ्टर अ फ्यू इयर्स मैंने दवाइयाँ खानी छोड़ दी। मैंने कहा ठीक तो होना नहीं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाता था, वो कहते थे मुंह खोलो, टॉर्च मारते थे, गला देख के कहते थे यार तू खाना कैसे खाता है, तेरा अंदर तो सारा छिला हुआ है, बिल्कुल लाल है। एंड सेकेंड प्रॉब्लम आई हैड वाज आई हैड severe constipation. I used to have combinations of medicines in the night, आयुर्वेद एलोपैथिक मिला के, एंड तब भी नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग मेरा स्टमक क्लियर नहीं होता था। तो जिस दिन गुरुजी ने मम्मी को ये 3 चीजें बोली लाने को, उस दिन मम्मी ने कहा कि गुरुजी ऐदा गला बड़ा खराब रहता है। गुरुजी ने मेरे को देख के कहा, कहते हैं
तू अपने नक विच रात ਨੂੰ ਸੌਣ ਵਕਤ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਕਰ। And I said, Guruji, ਮੈਨੂੰ ਕਬਜ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। He said, ਚਾਵਲ ਛੱਡ ਦੇ। I said, okay. We arranged for घी, गाय के दूध का घी। And first night जब मैंने डाला तो जब घी ने, because my nostrils and all were totally blocked, they were jammed, घी ने अपना रास्ता बनाना शुरू किया और मेरे को इतनी दर्द हुई मैं आपको बता नहीं सकता। एंड वो घी अपना रास्ता बनाते बनाते नीचे तक गया। एंड एवरी नाइट आई यूज्ड टू पुट द घी इन माय नॉस्ट्रल्स एंड फॉर नेक्स्ट 10-15 डेज अंदर से इतना गंद निकला, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जो भी अंदर वो इतने सालों का गंद जमा हुआ था वो बाहर निकला। एंड आई डिड इट फॉर आई थिंक 5-6 साल मैंने रोज रात को घी डाला। एंड नाउ आई एम लाइक अ नॉर्मल पर्सन। मेरे को साल में कभी 1-2 बारी जुकाम लगता है लाइक एनीबडी एल्स, एंड माई थ्रोट एंड इज परफेक्ट। मैं खट्टा खाऊं, जो भी करूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मेरी कॉन्स्टिपेशन कहाँ गई मेरे को कुछ नहीं पता। आई एम परफेक्टली फाइन। एंड जिस चीज के ऊपर बैन लगा होता है ना, वो चीज खाने का बहुत दिल करता है। तो चावल, वैसे वी आर नॉट बिग राइस ईटर्स, कभी हफ्ते में 1 बारी खा लिया तो खा लिया, बट फॉर इयर्स आई डिडंट हैव राइस। मतलब कहीं जाओ, पुलाव बना होता था तो दिल, उसकी खुशबू आती थी, दिल करता था खाने का, लेकिन खाता नहीं था मैं। देन वन डे इन द नाइट अराउंड 2-2:30 बजे का टाइम था, गुरुजी के साथ हम 8-10 लोग बड़े मंदिर में बैठे हुए थे। एंड गुरुजी कॉल्ड माली एंड ही सेड कि मालन नु बुला। एंड मालन को बुलाया, उसको कहा मिठे चौल बना। एंड देन ही लुक्स एट मी एंड ही सेड तू भी जा, तू भी सिख किस तरह बंदे ने। तो मैं किचन में चला गया मालन के साथ, हमने चावल बनाए, मीठे लेके आए, तो गुरुजी ने सबको प्लेट में डाल के दिए और मेरे को भी दिए। इट वॉज दैट इंडिकेशन फ्रॉम गुरुजी साइड टू मी कि आज से मैं चावल खा सकता हूँ। आई थिंक इट वॉज 6-7 years के बाद मैंने पहली बारी चावल खाए। अराउंड 2000 की बात है। मेरा बिजनेस नहीं चल रहा था, मेरा काम होते होते रुक जाते थे। ऐसा था जैसे गले में रोटी चली गई है एंड कोई हाथ डाल के उसको खींच लेता था। 99% काम हो जाता था, कोई 1% अटकता था एंड एवरीथिंग यूज्ड टू फॉल थ्रू। उन दिनों गुरुजी के पास एक कपल आता था एंड हस्बैंड वाज वेरी गुड एट ज्योतिष विद्या एंड ऑल। एंड आई यूज्ड टू they used to stay in South Delhi only, and मैं उनके घर बड़ा जाता था, बट कभी ज्योतिष वगैरह आई डोंट बिलीव, मैंने कभी इन चीजों में बिलीव नहीं किया, तो कभी ना हाथ दिखाया उनको, ना पत्री दिखाई, ये वो। बट संगत के बहुत लोग उनके पास जाते थे एंड जब मैं जाता था वो कहते थे देख वो आया, ये उसकी पत्री पड़ी है, संगत का वो आया, उसकी पत्री पड़ी है, उसको मैंने ये उपाय बताया, उसको वो उपाय बताए। एंड आई यूज्ड टू आस्क हिम कि वो गुरुजी डज नॉट बिलीव इन दीज थिंग्स, तो ये लोग आपके पास आके पत्रियां क्यों दिखाते हैं? तो ही सेड गुरुजी से लोग बात नहीं कर सकते ना, तो इसलिए वो मेरे से बात करते हैं और मैं उनको बता देता हूँ ऐसे ऐसे करो। एंड during those days my cousin was getting married in Pune and I was in no mood and frame of mind to go to Pune, so I told my parents कि आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। My chacha had booked a bogie and पुणे के लिए ट्रेन निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से जाती है दोपहर को। विंटर्स का टाइम था, मैंने अपने पेरेंट्स को स्टेशन छोड़ा एंड शाम को मेरे को 7 बजे एम्पायर स्टेट पहुंचना होता था, मेरी शब्द लगाने की सेवा होती थी। मैंने कहा घर जाके क्या करूंगा, मैं वो भैया हैं उनके घर चला गया। सो ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड क्या हो गया, आज तो बहुत उदास लग रहा है। मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे है, बहुत टाइम हो गया काम नहीं चल रहा एंड मैं बहुत परेशान हूँ। ये ही सेड अपना हाथ दिखा मेरे को एंड मैंने कहा भैया मैंने तो जिंदगी में कभी किसी को हाथ नहीं दिखाया और गुरुजी भी इन चीजों में भी नहीं मानते।
तो मैं तो हाथ दिखाऊंगा नहीं। ही सेड देख कभी कभी ना गुरुजी किसी और के थ्रू काम कराते हैं, तो आज गुरुजी ने तेरे को मेरे पास भेजा है और मेरे थ्रू तेरा काम कराना है। एंड ही सेड तू इतने सालों से मेरे पास आ रहा है, कभी ऐसी बात हुई है कि मैंने तेरे को बोला है हाथ दिखाया कुछ? मैं उनकी बातों में आ गया, मैंने हाथ दिखा दिया उनको। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे और उसके बाद उन्होंने बातें बताई विच वर एग्जैक्टली 100% ट्रू। एंड ही सेड तूने, तेरे पास पत्री है? मैंने कहा जिंदगी में हाथ नहीं दिखाया, पत्री तो बड़ी दूर की बात है। कहते कल तू अपनी पत्री बनवा के ले आई हो, वो शुरू की जो 3-4 पेज की होती है वही बनवाई हो, पूरी नहीं बनवाना, उसकी जरूरत नहीं है। वैसे उपाय तो मैं तेरे को आज ही बता सकता हूँ, बट कल एक बारी पत्री देके कंफर्म कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग जी मैं पत्री बना के उनके घर पहुंच गया। एंड उन्होंने पत्री देखी, उन्होंने मेरे को 4 उपाय बताए। नाउ आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट क्या क्वांटिटी थी या कौन सा दिन था, तो किस दिन क्या उपाय करना था, बट ही सेड कि ये 4 उपाय तुमने करने हैं। एक उपाय था कि कुछ 2 किलो या 2.25 किलो लोया एक पर्टिकुलर डे पानी में बहाना है। फिर 5 हफ्ते एक पर्टिकुलर डे काले कुत्ते को रोटी खिलानी है। ही सेड इस दिन काला कुत्ता रोटी नहीं खाता, अगर तेरे हाथ से खा गया तो समझ ले तेरा काम हो गया। एंड उनके घर के नीचे काले कुत्ते बड़े थे, तो मैंने कहा जी भैया मैं तो आपके घर ही ले आया करूंगा, यहीं पे खिला दिया करूंगा मैं। एंड देन ही सेड कि एक पर्टिकुलर डे फॉर 5 वीक्स हनुमान जी के मंदिर, आई थिंक इट वाज अ ट्यूसडे, हनुमान जी के मंदिर जाके 2.25 किलो गुड़ चढ़ाना है। एंड एक उन्होंने मेरे को कहा कि चांदी का चांद पहनते तू। मैं ठीक है। तो 3 हफ्ते हो गए थे मेरे को ये उपाय करते हुए। एंड एम्पायर स्टेट में बैठा हुआ था शब्द लगा के, गुरुजी के रूम का दरवाजा खुला, गुरुजी वॉकड आउट एंड ही लुक्ड एट मी, ही गेव मी अ वेरी स्टर्न लुक एंड ही वेंट एंड सैट ऑन हिज गद्दी। पीछे पीछे कर्नल जोशी अंकल आए एंड मैं लाइन में लगा हुआ था माथा टेकने के लिए, तो जोशी अंकल मेरे साथ आके कहते हैं मेरे को, कहते हैं आजकल तू केड़े पुट्ठे काम करता पे? मैं कहा अंकल मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं कहा क्या किया मेरे को बताओ। कहते हैं अच्छा मैं तेरे को बाद में बताऊंगा। जोशी अंकल की चाय प्रसाद की सेवा होती थी, वो सेवा कर रहे थे अपना। एंड माई माइंड वॉज वर्किंग ओवर टाइम कि मैंने क्या किया, मैंने क्या गलती करी है। मेरे पहले क्या किसी ने मेरी शिकायत लगाई है मेरे से गुरुजी को, एंड गुरुजी इज एंग्री विद मी। देन लॉट ऑफ whatever I could think of, मैंने सब कुछ सोच लिया कि मेरे से या संगत के बाहर मेरे से कोई गलती हुई है। एंड बट आई कुडंट फिगर आउट कि मेरे से क्या गलती हुई है। लंगर हुआ, लंगर के बाद एक बारी चाय प्रसाद हुआ, फिर दूसरी बारी चाय प्रसाद हुआ। एंड उसके बाद जोशी अंकल मेरे पास आके बैठे, 11:30-12 का टाइम था। मैंने एंड आई वाज बाय दैट टाइम आई वाज शेकिंग, आई वाज मतलब मेंटली आई वाज शेकिंग, फिजिकली आई वाज शेकिंग। एंड मैं कहा अंकल मेरे को बताओ तो सही मेरे से हुआ क्या है। ही सेड गुरुजी कहते ने कि आजकल बावे ने भी पंडितां को जाना शुरू कर देता है। नोबडी इन माय फैमिली आल्सो न्यू कि मैं ये कर रहा हूं, बट गुरुजी न्यू। एंड आई सेड अंकल देखो ऐसे 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 हुआ था, मेरी ये गलती है कि मैं उसकी बातों में आ गया उनकी। ही सेड मेरे को नहीं पता, बट गुरुजी ने ऐ किया। फॉर नेक्स्ट 3 days, फॉर नेक्स्ट 3 weeks मैं गुरुजी को माथा टेकूं तो गुरुजी अपने चरण पीछे कर लेते थे। गुरुजी प्रसाद दे रहे हैं, जब मेरी बारी आती थी तो प्रसाद देते थे तो मुंह दूसरी साइड कर लेते थे। ही यूज्ड टू टॉक टू मी एवरी डे, चाहे वो नमस्ते बावे कह दे, बट कुछ ना कुछ बात जरूर करते थे। गुरुजी मेरे से बात ना करें। ही स्टॉप्ड कॉलिंग मी इन हिज रूम। एंड मतलब इट वाज लाइक कि he was very disappointed with me. I wouldn't say angry, but he was very disappointed with me. And those 3 weeks, believe me, at least 50 times a day, I used to stand in front of Guruji's photograph and I used to beg for his forgiveness कि गुरुजी मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ कर दो।
and I used to cry, and I used to cry not because Guruji is not talking to me or is ignoring me. I used to cry because I had that guilty feeling in my heart that I have let my Guru down. बाय द वे, जिस दिन वो जब जोशी अंकल ने मेरे को कहा कि गुरुजी ने ऐसे ऐसे बोला, तो सबसे पहले तो मैंने घर आके पत्री को बाहर फेंका कि जी आप तो घर से बाहर निकलो. एंड देन नेक्स्ट 3 weeks ये चलता रहा ऐसे, एंड गुरुजी was totally ignore me, and I used to cry and beg for his forgiveness in front of his photograph. 3 हफ्ते बाद मैं सुबह नहा रहा था, एंड नहाते वक्त फिर शुरू हो गया, गुरुजी मेरे को माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, ये जो मेरी नॉर्मल चीजें थी मैं बोलता गया दिल में. एंड दैट डे आई सेड कि गुरुजी आज मैं आपको एक चीज प्रॉमिस करता हूँ, चाहे मैं जितनी बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, और मेरे आके गुरु नानक देव जी और शिव जी भी खड़े होके कहें कि तू ये उपाय कर ले, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व होएगी, जब तक आप नहीं कहोगे मैं नहीं करूंगा. और जैसे ही मैंने ये बोला, एक आवाज आई छन, एंड आई लुक डाउन, एंड वो चांदी का चांद नीचे गिरा हुआ था. आई हैड फॉरगॉटन टू टेक इट ऑफ. और ये नहीं कि धागे में मैंने पहना हुआ था कि धागा टूटा, उसकी जो गांठ है, गांठ खुली और वो चांदी का चांद नीचे गिरा हुआ. मैं बाहर निकला, मैंने वो चांद को निकाला और फेंका. शाम को गुरुजी के पास गया, एंड गुरुजी वाज नॉर्मल. ही was talking to me in a normal manner कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. And because he knew that I have learnt my lesson. I would like to say this कि गुरुजी अपनी संगत को टेस्ट करते हैं, अपने संगत वालों को. एंड गुरुजी ने वो मेरा टेस्ट लिया था जिसमें मैं फेल हो गया. बट गुरुजी, अगर वो फेल हुआ, तभी मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन सीखा कि जैसे आजकल ये मैसेजेस का दौर चढ़ा हुआ है कि बहुत संगत कहती है जी आपके लिए ये मैसेज आया है, वो मैसेज आपके लिए आया है, गुरुजी ने आपके लिए ऐसे बोला है, आपके लिए ऐसे बोला है. बट गुरुजी टॉट मी अ लेसन दैट डे कि मैंने जो तेरे को कहना है वो मैं डायरेक्ट कहूंगा. गुरुजी डज नॉट नीड एनी इंटरमीडियरीज टू गिव एनी मैसेज टू यू. जो गुरुजी ने आपको कहना है वो डायरेक्ट कहेंगे आपको. हाँ, आपके दिमाग में कुछ है, चल रहा है, और आप कोई सत्संग सुनोगे, और उस सत्संग से आपको आपकी जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा. एक चीज और, आजकल एक अमृत वेला सत्संग चल रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं. गुरुजी नेवर बिलीव्ड इन दिस. गुरुजी यूज्ड टू से कि जिस टाइम गुरु ਨੂੰ सच्चे दिल नाल याद करो, वही अमृत वेला होता है. जय गुरुजी. आई वुड लाइक टू एंड माय सत्संग हियर. थैंक यू. तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा उमेश अंकल से कि वो आए और गुरुजी का सत्संग शेयर करें. या जय गुरुजी एंड साथ संगत को प्रणाम. आई एम सो थैंकफुल टू बी इनवाइटेड टू दिस सत्संग. जैसे सबसे पहले आज सेको आंटी ने बताया कि कैसे वी डू चाइल्डिश थिंग, के उन्होंने कहा कि मैं सारे तंबुला जीत जाऊं, और वो जीत गई. एंड now when we look back, we think how childish it is. But मेरा भी गुरुजी के साथ जो जर्नी शुरू हुई वो ऐसे ही हुई. परसों दर्शन आंटी ने she did a satsang and she mentioned my name. So my journey with Guruji started with Darshan aunty. At that time I used to live in Saharanpur, and we have an orchard and a nursery. So Darshan aunty used to visit Saharanpur a couple of times, and she wanted to buy plants. So I came in contact with her, and that time she was flying with Air India. So she mentioned once that she goes to a Guruji, and personally I never believe in any such Guruji or people, such people. I hardly ever go to a temple. So next time I told her that next time I'm in Delhi, maybe I'll like to go with her. She said, good, okay. So couple of months later, I was visiting my brother in Mayur Vihar, and just had a chat with Darshan aunty. And she said that I'm going to Guruji's, and would you like to come? I said, okay, fine.
to be frank, I was more interested in meeting Darshan than, meeting Guruji. Now we can laugh about it, but that was a fact. Now going to Empire State in evening was quite a thing, but I went and I didn't know the rules. So it was a L-shaped hall. So me and Darshan was sitting at end of the hall and chatting away. And though we were not supposed to talk or anything. And when time came to take Agya, so Guruji said, "Aya kar tu." Now I realize कि गुरुजी को अगर किसी को ये कहा कि तू आया कर, that means Guruji has accepted that person. मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मैं I will tell you now कि एक दो लोगों को ले गया, गुरुजी ने मुझे कहा एनु फेर ना लाई, और जिसको भी ये कहा कि आया कर, उसका मुझे पता है कैसे कल्याण हुआ. चलो मैंने जाना शुरू किया गुरुजी के पास. Then I shifted to Delhi. So that first night when I left, मैं गुरुजी को मतलब आपको देख के पहले ऐसा नहीं लगता था कि ये कोई टिपिकल महापुरुष टाइप के हैं. He was laughing away and he was joking. तो जब मैं वहां से चला एम्पायर स्टेट से around 11 o'clock, that time used to be many red lights, more than 30 red lights right up to मयूर विहार IFS अपार्टमेंट्स. तो मैंने मन में सोचा यार ये सब कुछ नहीं होता गुरुजी, और मैंने कहा अच्छा गुरुजी कुछ अगर आप में है तो मुझे एक भी रेड लाइट नहीं मिलनी चाहिए. I should get all green lights like a stupid person. 1, 2, 3, 4, every light green. And I kept on saying, no, it can be any coincidence. It can be a coincidence. Last light, that is when we took a turn towards Mayur Vihar from the main road. अब तो वहाँ पे वो फ्लाईओवर बन गया. Last light was red when I saw from a distance. तो मैंने कहा यार ये कुछ नहीं है गुरुजी ये सब ठीक है, अभी तक सब ग्रीन मिल गई, कोई बात नहीं. तो the moment I reached that light, it turned green. मैंने कहा यार कुछ तो है, ऐसा नहीं हो सकता कि 30 लाइट्स हैं सारी ग्रीन है. Anyway, next time I went to Guruji, Guruji said, हाँ भाई जैन वो लाइटों वाली बताई. I said what लाइटों वाली? And then I told did the satsang and Guruji laughed away like anything, and 3-4 times he said वो लाइटों वाली बताई. So now we know that how stupid we were, how jovial Guruji was. He loved this kind of things. So this was my first thing with him. Now I tell you the last thing, which is happened only couple of years back. I have a friend, very dear friend he used to live that time in Bangkok. He is an Indian but living there for 25 years. So one day he called me and he said कि जैन साहब मुझे ना हार्ट अटैक हो गया यहाँ पे, and I went to the hospital. They put in 2 stents, but they said after 3-4 days that you have to go for a bypass. So मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ तो बहुत महंगा है, और दूसरा अगर मरना भी है तो चलो अपने कंट्री में मरेंगे, तो आप कोई दिल्ली में कुछ देखिए अच्छा सा अरेंजमेंट. So I had a friend in Escorts Hospital. तो मैंने उससे बात की, उसने कहा हमारा पैकेज है 4-5 लाख रुपए का, and asking to call this number and they will arrange everything. उसको यहाँ आएगा, एडमिट कर लेंगे, अगर उसको ज्यादा प्रॉब्लम है एयरपोर्ट से we will pick him up. So I told him. तो उसने बताया हाँ ठीक है मेरा अपॉइंटमेंट हो गया, मुझे इस तारीख को आना है. जब वो आ गया होगा यहाँ पे तो मुझे ध्यान आया, मैंने कहा वो तो आ गया होगा. I just called him. I said तू कहाँ है भाई, तेरा ऑपरेशन होना था यहाँ. बोला नहीं मैं आया, और somebody told me कि यहाँ पे एक और भी थेरेपी चल रही है जिसमें कि वो कुछ लेग्स में कंप्रेशन करते हैं, एंड ECH या कुछ ऐसी थेरेपी है. He is a doctor in near that big मंदिर. तो मैंने सोचा मैं पहले वो करा लूं. मैंने कहा यार देख ले भाई, तो इस तरह के पता नहीं ये झोला छाप डॉक्टर होते हैं. बोला नहीं झोला छाप नहीं है,
and couple of my customers have also got it done and they are fine. और मैं 4-5 दिन से करा रहा हूँ, 1 महीने का कोर्स है and I am feeling quite good. 1 महीने वो कराता रहा. I used to call him out almost every 3rd 4th day कि ठीक है तो उसने कहा हाँ मैं ठीक हूँ. After a month he said that मैं काफी ठीक हो गया हूँ, I can climb stairs and I am going back. वो चला गया वापस बैंकॉक और मैंने और लोगों से भी पूछा उस थेरेपी के बारे में तो उन्होंने कहा हाँ ये होती है और लेकिन अगर किसी की फेल होती है तो फिर उसको कोई बचा नहीं सकता. 4-5 महीने वो बताता रहा कि आई एम फाइन. एक दिन उसका फिर से फोन आया कि जैन साहब प्रॉब्लम हो गई और वो एस्कॉर्ट्स वाला आप दोबारा कराओ. मैंने कहा नंबर तो तुझे दिया था. बोला नहीं दोबारा कराओ आप. फिर मैंने उसको नंबर पूछ के दिया. He came back, got admitted. 4-5 दिन बाद फिर मैंने उसको फोन किया कि भाई क्या पोजीशन है तो he didn't pick up, his wife picked up. उसने कहा कि उमेश is in bad condition और डॉक्टर्स अभी कुछ बता नहीं रहे. So I went and visited him after I think 6-7 day and I took Guruji's Sarup with me. तो his wife was very sad. उनके कुछ और भी relatives थे तो उन्होंने कहा कि नहीं वो तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं और एक डॉक्टर ने तो कहा कि नहीं हम कुछ कर नहीं सकते. मैंने कहा आप ऐसा करो ये स्वरूप गुरुजी का रख दो. हाँ कोई नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा. नेक्स्ट डे शी कॉल्ड मी अगेन. सर रमेश वो स्वरूप गायब हो गया वहां से, पता नहीं कैसे हुआ, आईसीयू में है, कहाँ गया, एक और भेज दो. मैंने फिर से भेजा. After 10 days, Escorts Hospital said that we can't do anything. Your heart is damaged beyond repair, and you have to go for transplant. So you better go home and wait for a transplanted heart. Practically, they said go home. घर आ गया. Somebody said कि आप वहाँ चले जाओ, वेदांता चले जाओ. They took the reports there. Same thing they said कि कोई फायदा नहीं है. You have wasted your time by coming here. उसी दौरान and they were waiting at home. उसी दौरान एक 26 जनवरी को यहाँ नोएडा में काफी बड़ा सत्संग होता है. I think it's 2 years back. मैं वहाँ गया. जनरली मैं सत्संग नहीं करता हूँ. I am very quiet and just go there, sit in a corner, have my langar and come back. That day said उमेश अंकल आप सत्संग करो. Said okay. मैंने अपना सत्संग किया. एंड में मैंने बोला कि मैं आज आया हूँ टू चैलेंज गुरुजी. और मेरा एक फ्रेंड ऐसे ऐसे बीमार है, उसको सबने जवाब दे दिया. एंड आई एम चैलेंजिंग गुरुजी एंड आई एम टेलिंग सत्संग संगत जी कि गुरुजी उसको ठीक करके भेजेंगे. आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट. बाद में मुझे लोगों ने कहा भी कि मैं अंकल आप इतने सीनियर हो, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो. मैंने कहा मुझे नहीं करनी चाहिए, मुझे ही पता है, पर मैंने कर दी. एंड आई डोंट नो व्हाई आई डिड इट. 3-4 दिन के बाद मैं उसकी वाइफ से बात करता रहा. मैंने कहा कैसी पोजीशन है. 3-4 दिन के बाद उसने कहा कि हमें किसी ने मैक्स हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर बताया है कि मे बी यू शुड ट्राई हिम. तो हम सोच रहे हैं चले ही जाते हैं कुछ. तो दे टुक द रिपोर्ट्स देयर एंड द डॉक्टर सेड देखिए कुछ इज ओनली 5% चांस बट आई विल टेक अ चांस और ऐसे ऐसे आप आ जाइए एंड आई विल ट्राई बट आई एम टेलिंग यू इज ओनली 5% चांस. वो एडमिट हो गए. ऑपरेशन की तैयारी हो गई. They wheeled the patient in. His wife told me later on कि उनको अंदर ले जाने के बाद डॉक्टर ने मुझे कहा कि एक बार लास्ट टाइम देखना चाहोगी because chances are very less. And he said he called him back and said आप आराम से मिल लो. That operation went perfect without any hitch. वो बंदा बिल्कुल ठीक हो गया. Almost normal हो गया. Now they shifted to Yangon. I was with them this January.
stayed with them. He says, I am as good as I can be. मैं ये मानता हूं कि वो सिर्फ एंड सिर्फ गुरुजी ने कराया। मैं बीच में सोचता रहता था कि हम सब गुरुजी के चमत्कारों की बात करते हैं कि हमने ये कहा, गुरुजी ने कर दिया। और गुरुजी ने एक बार मुझे कहा था, मैंने गुरुजी से कुछ कहा कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है और वो बहुत पैसे मांग रहे हैं, क्या करना है। तो गुरुजी बोले, गुरु ही तो सस्ता है, बाकी तो सब महंगा है। तो गुरुजी हमेशा कहते थे, मेरे सस्ता कोई मिलेगा क्या? कुछ ना, कोई आपको कुछ रिचुअल करना है ना, आपको कोई दान देना है ना, आपको कुछ भी नहीं करना। तो मैं कहता था, भाई यहाँ करना क्या है फिर आके? गुरुजी कोई दान नहीं मांगते, लंगर आप खाओ, लंगर का खर्चा कहाँ से आ रहा है वो किसी को नहीं पता। There was a very senior government officer, almost next to cabinet secretary, and known to me. When he retired, he got settled in Delhi only. So I used to meet him once in a while. So he said कि वो आप कहीं गुरुजी के पास जाते हो? मैंने कहा हाँ। बोला कभी चलेंगे आपके साथ में? कहा चलो। तो गुरुजी के यहाँ में ले गया। जब हम आज्ञा ले रहे थे, सिर्फ 2 बंदे ऐसे हैं आज तक जिनको गुरुजी ने कहा अनु फेर ना लाई। तो जब आज्ञा लेके चले, गुरुजी ने मुझे बुलाया एंड ही सेड अनु फेर ना लाई। तो मैंने ऐसे ही गुरुजी से कहा, मैंने जी क्या बात हुई? तो गुरुजी सेड इट लाउड व्हेन ही वॉकड आउट। ही सेड ये बंदा जब पावर में था, इसने कभी किसी का कोई भला नहीं किया। जो भी इसके पास दुखियार आ गया, इन लती मारी उसकी। अब मैं इसका अब क्या कल्याण करूंगा? That was the message I was asking myself again and again कि गुरुजी को हमसे क्या चाहिए? So I think what my personal opinion is कि गुरुजी को हमसे चाहिए कि सब कुछ दूंगा, तू नेक बंदा तो बन, तू बर्तन जो यहाँ लेके आ रहा है मेरे से मांगने, उसे साफ तो करके ला। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। जैसे एक अंकल ने कहा कि गुरुजी मेरे से पहले के वो 1-to-1 रिलेशनशिप कहते थे। रोज गुरुजी आज भी हमको अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं कि आई एम विद यू, जस्ट हैव डायरेक्ट कनेक्शन। जैसे आप इट्स अ जर्नी विद योर गुरु इन अ फॉरेस्ट when there is nobody else, just you and Guruji walking in a forest. आज भी गुरुजी हमें अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। बीच में एक बार बड़े नाराज हो गए मेरे से, और इतने नाराज हो गए, मुझे नहीं पता क्यों हो गए, कि लेकिन गुरुजी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। मैं जब जाता था अपनी वाइफ के साथ, तो गुरुजी मुझे कहते, तू बाहर बैठ, जोड़ों के पास बैठ जाके। वाइफ को कहते, तू इत्थे बैठ जा। मैं बाहर बैठा रहता था एम्पायर स्टेट में, मुंह टटका के। तो जो पुराने लोग थे, जोशी अंकल वगैरह, वो कहते थे, जैन साहब चिंता ना करो, गुरुजी आपके कोई कर्म कट रहे हैं, आप परेशान ना हो। या जय गुरुजी एंड साथ संगत को प्रणाम। मैं अर्चना श्रीवास्तव आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और गुरुजी के सत्संग शेयर करें। अर्चना श्रीवास्तव आंटी। जी जी अंकल, जय गुरुजी। कैन यू हियर मी? एम आई ऑडिबल? यस आंटी, या ओके, thank you. First of all, शुक्राना to Guruji for creating this beautiful platform. And Guruji himself said, अपने गुरु की उस्तत करना सब तो बड़ा पाठ है। तो अपने गुरु के बारे में उनकी बड़ाई करना, उनकी प्रेस करना, इससे बड़ा कोई काम नहीं, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। So thank you Guruji for giving me this opportunity today. And महाशिव हैं साक्षात, उनके बारे में कुछ कहने के लिए भी वही ब्लेस करते हैं, तब आप बोल पाते हो। तो गुरु जी के लिए मैं बस 1-2 छोटे सत्संग अपने सुनाऊंगी। हालांकि उनकी महिमा तो इतनी बड़ी है कि हम बखान ही नहीं कर सकते। आई एम अर्चना श्रीवास्तव आंटी फ्रॉम डालस USA, एंड दिल्ली में आई एम फ्रॉम गुड़गांव, सो आई एम गुड़गांव संगत। सो गुरु जी अपनी शरण में खुद बुलाते हैं, like when the right time comes, he calls his sangat
He just picks you from wherever you are, in any corner of the world, wherever you are, he just calls you to his darbar. That's his grace, his meher, his mercy. तो गुरु जी जब आपका राइट टाइम आ जाता है, we all are very chosen ones, we all are the blessed imprinted ones, जो गुरु जी हमें ढूंढ लेते हैं किसी भी कोने से दुनिया के. और उन दिनों, I'm talking about 2003, we moved from UK to Gurgaon in TLF Phase 4, and गुरु जी का दरबार लगता था एम्पायर स्टेट में उन दिनों थर्सडे टू संडे. नाउ गुरु जी का दरबार इन दिनों it was not very like open or public, and संगत was not even allowed to talk about गुरु जी in those days. तो किसी को ज्यादा पता नहीं रहता था. ऑफ कोर्स गुरु जी की मर्जी नहीं होती थी. जिसको बुलाना होता था गुरु जी किसी संगत के थ्रू या ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर देते थे कि आप उनके पास पहुंच जाते थे. तो हमारी एक बहुत अच्छी फ्रेंड एंड नेबर थी भाटिया आंटी. उनको लाइक गुरु जी ने ऐसी प्रेरणा दी कि उन्होंने हमें गुरु जी के बारे में बताया, और वो हमें गुरु जी से परमिशन लेके, क्योंकि उस समय परमिशन लेनी होती थी दरबार में लाने के लिए किसी को, तो वो हमें उन्होंने बताया. और वी वर वेरी हैप्पी, मी एंड माय अंकल बोथ, विकास अंकल. somehow we were very spiritually inclined, and गुरु जी की मेहर है कि हम बस उनके बारे में और जानने के लिए हमारे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होने लगी. So Guru ji called us, and that was summer of 2003, and I still remember that beautiful Sunday. शाम को उन्होंने कहा कि 7 बजे से गुरु जी का दरबार लगता है, 7 to 9, तो आप उस समय आइए, हमारे साथ चलिए. हम पहुंच गए उनके घर थोड़ा जल्दी ही एक्साइटमेंट में, और थोड़ा जल्दी पहुंच गए दरबार. तो गुरु जी का एम्पायर स्टेट दरबार जो है उसमें बाहर पार्किंग होती है, सबको पता होगा संगत को, और अंदर वॉक करके पूरा जाते हैं. That's what we did. और अंदर जब हम वॉक करके गए तो सामने गेट पे सिंगला अंकल खड़े हुए थे. सिंगला अंकल ने बोला गुरु जी अभी वॉक करने गए हैं, लेकिन आप लोग अंदर बैठ जाइए, आते होंगे गुरु जी. हम लोग अंदर जाके बैठे. I was so like surprised to see what's happening here. Like कहाँ है गुरु जी, कौन से गुरु जी होंगे? I was very excited. तो हम बस बैठे अंदर, 8-10 संगत बैठी होंगी मुश्किल से. एक बड़ा सुंदर सा हॉल था, मरून कर्टन, रेड कारपेट, and it's a beautiful house with a chandelier, but there was no furniture. सारी संगत जमीन पे बैठी थी और गुरु जी की गद्दी लगी हुई थी. हम बैठे और किचन के सामने एक साइड बोर्ड है, and suddenly here comes Guruji from outside. Oh my God! Like जैसे इतने सुंदर, and he was wearing black trousers and bush shirt and sport shoes. और वो जल्दी आए और चलते हुए वो जो किचन के सामने वाली साइड बोर्ड है उस पे बैठ गए, एक पैर के ऊपर पैर रख लिया, और जो संगत थी जल्दी से उठ के उनके दर्शन करने के लिए, मत्था टेकने के लिए जाने लगी. हम भी गए, और भाटी आंटी ने बोला चलो गुरु जी को मत्था टेकने. मैंने कहा कहाँ है गुरु जी? तो भाटी आंटी ने कहा कि ये गुरु जी. मैं कहा ऐसे गुरु जी है? Like I had a totally different notion of any guru or baba, like wearing rudraksh and having beard and a lot of matted hair and all, and भगवा कपड़े पहने होंगे, but ऐसे कुछ भी नहीं. So anyway, it was very nice, and हम गए और मत्था टेका जैसे ही गुरु जी को मैंने, and भाटी आंटी kind of introduced us. और जैसे मैंने ऊपर देखा, and I saw Guruji just looked at me, and he looked at me, and in that one glance, everything changed. बाद में मुझे संगत ने बताया कि गुरुजी ने कहा है कि जब आप मेरे पास आते हो तो मैं आपको स्कैन कर लेता हूँ, like a MRI machine, like a CT scan. I scan your soul. Maybe that's what he did, you know. And गुरुजी ने कहा था कि जब आप आते हो तो जन्मों की फाइलें मेरे सामने खुल जाती हैं. As a soul, wherever you have been, whatever you have gone through, whatever you have done in your past lives, everything is clear to me. मैं आपकी फाइल खोल देता हूँ. So yeah, that experience was very beautiful. फिर हम बैठ गए वहीं पे, और गुरुजी उठ के अपने रूम में तैयार होने के लिए चले गए. संगत आनी शुरू हो गई, और संगत धीरे धीरे बढ़ती गई. And to name a few, like they were the creme de la creme of the society, Delhi के topmost bureaucrats, politicians, Menka Gandhi auntie, Arun Shourie uncle, everyone. And I was like totally mesmerized. ये क्या जगह है, क्या हो रहा है यहाँ पे?
एंड सडनली गुरुजी के रूम का दरवाजा खुला और गुरुजी बाहर आए. आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स कि भगवान अगर जमीन पे उतर आए तो शायद ऐसे लगेंगे. He was so divine. His aura was like, oozing out energy. इतनी ज्यादा उनमें एनर्जी. I was mesmerized. Like head to toe, वो बिल्कुल जैसे नूर का दरिया एक बहता हुआ आ रहा हो. और वो अपने रूम से जल्दी जल्दी निकल के वॉक करते हुए फिर अपनी गद्दी पे आके बैठ गए. Oh my God, it was so beautiful. Guruji was so divine. उनके चेहरे से लग रहा था नजर नहीं हटे, लेकिन at the same time his aura was so strong, his नूर was so powerful कि आप उनके चेहरे को देख नहीं सकते थे लगातार. Like जैसे ही आपकी नजरें उन पे पड़ती, नजरें अपने आप झुक जाती थी. इतना उनके चेहरे पे नूर था. तो वो प्रोसीडिंग्स संगत की शुरू हो गई, शब्द चलने लगे. Since I am not a Punjabi, I actually never heard any shabads before. But that day, the shabads which were played there, they spoke to my soul. So beautiful. It's like, I was getting all my answers through shabads. संगत के साथ ये भी बाद में पता लगा कि जब आप आते हो दरबार में, आप एंटर करते हो, उस दिन जो शब्द बजते हैं वो गुरुजी आपके लिए चलवाते हैं. एंड अगेन जस्ट टू एम्फसाइज ऑन शब्द्स, प्लीज नई संगत जो भी है या जो भी, खैर नया पुराना कुछ नहीं, लेकिन फिर भी संगत सारे वही शब्द चलाएं जो गुरुजी ने खुद हैंड पिक किए हैं. उससे बढ़ के क्या हो सकता है कि गुरुजी चोज दो शब्द टू ब्लेस द संगत, टू कम्युनिकेट टू द संगत. जो भी गुरुजी को कहना, सी गुरुजी नेवर गेव एनी प्रवचन, sermons or any do's and don'ts and remedies and whatsoever. But at the same time, जब आप गुरुजी के पास जाते थे, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, मुंह नहीं खोलना पड़ता था, और आपके सारे काम ऐसे बन जाते थे जैसे आप किसी कल्प वृक्ष की छाया में बैठे हो. सिर्फ ये नहीं, बल्कि not only this materialistic physical world, all your emotional, metaphysical, mental, everything, all the things, all aspects of your life. गुरुजी जब आपको एक बार अपने पास बुला लेते हैं, then you become his responsibility. वो आपको पूरी तरह से संभाल लेते हैं. He takes care and he does take care. Everything in your life, then he decides. Every moment he decides. तो वो वही करते रहे. एंड विद इन अ मंथ और सो एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया अपने उंगली के इशारे से, जैसे वो बुलाते थे. दैट यूज्ड टू बी सच अ ब्यूटीफुल हैंड जेस्चर बाय गुरुजी. जब संगत को बुलाना होता था तो वो ऐसा क्रिएट कर देते थे कि दैट पर्टिकुलर टाइम वो संगत उन्हीं की तरफ देखे, और वो बुला लेते थे ऐसे उंगली के इशारे से. तो मैं पीछे बैठी थी, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया और कहा गड़वी ले आई. सो आई एम नॉट अ पंजाबी, मुझे गड़वी नहीं पता था क्या मतलब होता है गड़वी का. तो मैं उस समय तो कुछ नहीं बोली. मैं बाहर निकली तो मैंने भाटिया आंटी को पूछा, उन्होंने कुछ बोला है मुझे लाने को, आई थिंक गड़वी बोला है. मैं कहा ओके, वो तो कॉपर का लोटा होता है, टम्बलर, तो आप लेके जाना. तो मैं नेक्स्ट टाइम मैं शायद मे बी आई फॉरगॉट और समथिंग, आई डिडंट ब्रिंग दैट. तो उसके बाद हमारे क्लोज रिलेटिव थे आरकेपुरम में, उनके यहाँ गुरुजी ने सत्संग करवाया, और गुरुजी ने कहा मैं आऊंगा और पार्किंग लॉट में सत्संग करना, और मैं वहीं पे दरबार मेरा लगाना. तो वो जब दरबार में गुरुजी बैठे थे, तो दैट आंटी ऑफ माइन, शी सेड कि चलो गुरुजी से कुछ बात कर लो. हालांकि कोई बात करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी जस्ट आउट ऑफ एक्साइटमेंट. द मोमेंट आई टच्ड, बाउड डाउन टू गुरुजी's feet, गुरुजी लुक्ड एट मी एंड सेड, फिर गड़वी लाने को बोला है ना. So I felt so humble that. Then of course next time I brought the garvi, new copper vessel with the lid, और गुरुजी ने उसको bless करके दिया. Then again एक बार उन्होंने मुझे दोबारा गड़वी लाने को बोला, और 2 गड़वी मुझे उन्होंने bless करके दी. This wonderful journey with Guruji started from there. Every week, Thursday to Sunday, we were just, एक गुरुजी के पास जाने का नशा हो गया था, जुनून जैसे होता है कि बस गुरुजी के पास जाना है. Like totally mesmerized and totally under his spell and totally in awe with Guruji, which we still are. And Guruji हमें बुलाते रहे. फिर हम बच्चे, like I was pregnant with my daughter, Guruji blessed my child, and
right from day one to the day of delivery, I was there at Empire State Darbar eating Guruji's blessed langar. And speaking of langar prasad, oh my God, such divine langar prasad. 4 लोग जब एक साथ बैठ के खाते थे, और गुरुजी के यहाँ एम्पायर स्टेट में पूरा एनवायरनमेंट, it used to communicate to you. Guruji आपके मन की बात जान लेते थे. He could read your mind, your thoughts, everything, whatever ambitions, desires you have, even unconscious ones. You are not aware of them, but Guruji knew about them. तो एक बार I'll just give just 1 or 2 small examples. So, you know, how Guruji could read your mind. So एक बार, that was a Diwali day, 2005 or 6 maybe, and मैं गुरुजी के यहाँ, हम लोग गए एम्पायर स्टेट में, तो गुरुजी के यहाँ जब जाते थे तो अंदर घुसते ही आप एक इंडिविजुअल संगत हो जाते थे. आपकी फैमिली कौन है, आपके हस्बैंड कहाँ है, दैट डजंट मैटर. तो वो कहीं और बैठे होंगे फर्स्ट फ्लोर पे, मैं नीचे. तो मैं गुरुजी के एम्पायर स्टेट दरबार में एक पिलर था किचन के सामने, उसके पीछे बैठ के आई वाज पार्टेकिंग द लंगर प्रसाद. उस दिन गुरुजी दिवाली बिग फंक्शंस में गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद देते थे. तो गुरुजी की जो गद्दी थी उसके बगल में एक कड़ा स्टील का परात होता था, उसमें गुरुजी में इतना ज्यादा प्रसाद पता नहीं कहाँ से आ जाता था, हिज डिवाइन हैंड्स, कि हमारे दोनों हाथ ओवरफ्लो होने लगते थे. जब वो एक हाथ से प्रसाद देते थे तो हमारे दोनों हथेलियों से वो प्रसाद ओवरफ्लो होने लगता था. इतना ज्यादा प्रसाद उनके हाथ से आता था, और हम बाहर जाके सिर्फ उसको ऐसे डायरेक्टली फ्रॉम द माउथ खा सकते थे. देयर वाज नो अदर वे, क्योंकि वहीं खत्म करना होता था. तो मैं देख रही थी कि गुरुजी प्रसाद दे रहे हैं, और उस समय लंगर के 3 राउंड होते थे, तो हम जानबूझ के तीसरे राउंड तक रुकते थे. Like this is why, this is how we can stay more and we can stay more time with Guruji here. तो हम जब 3rd राउंड तक रुकते थे तो मैंने देखा कि हम 3rd राउंड में लंगर खा रहे थे और गुरुजी प्रसाद दे रहे थे. तो मुझे लगा, लाइक माय ह्यूमन माइंड, मैंने सोचा आज गुरुजी सारा प्रसाद खत्म कर देंगे. जब तक प्रोटोकॉल ये होता था कि आप बाहर जाके हाथ धो के आते थे, जब आज्ञा लेने तब आपको गुरुजी हाथ से प्रसाद देते थे. तो मुझे लगा कि जब तक मैं बाहर जाऊंगी, हाथ धोऊंगी, अंदर आऊंगी, तब तक तो गुरुजी सारा प्रसाद खत्म कर देंगे. आज इतनी संगत है, मुझे नहीं मिलेगा. दैट वेरी मोमेंट गुरुजी लुक्ड एट मी and called me from there. वैसे ही उनका signature hand movement ऐसे करके उन्होंने मुझे बुलाया. And I think that was the first day anyone just broke that protocol कि बाहर जाके हाथ धो के नहीं, सीधे वहां से आके गुरुजी ने हाथ में इतना सारा प्रसाद रख दिया और बोले ले. So he could always, that's a very small glimpse of how he could read our minds, our thoughts. एक बार और लंगर के लिए जब बाहर संगत निकलने लगती थी तो जो बाकी लोग होते थे वो बैठ जाते थे, एक्स्ट्रा संगत बाहर निकल जाती थी 2nd और 3rd राउंड के लिए. मैं बस बाहर निकल ही रही थी और मैंने देखा मेनका गांधी आंटी वो गुरुजी के बिल्कुल चरणों में बैठ के और वो लंगर प्रसाद के लिए वेट कर रहे थे. तो मेरे मन में फिर से आया एक बार, हाउ लकी. एंड दैट वेरी मोमेंट गुरुजी ने फिर ऐसे हाथ का इशारा किया और बुला लिया. एंड दैट डे आई सैट एंड एकदम गुरुजी के चरणों में बैठ के मेनका गांधी आंटी के साथ में लंगर. आई एम टेलिंग यू, बिकॉज it shows how omnipresent, how omnipotent Guruji is. Like he can read all our thoughts, mind, everything, our heart, everything. He knows us inside out. इतना हमें भी अपने बारे में नहीं पता जितना गुरुजी को हमारे बारे में पता है. Nobody knows about it, but Guruji knows. And also गुरुजी का बर्थडे है. That's such a blessed, beautiful celebration. गुरुजी के जब चोले में थे गुरुजी, तो इतना ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन होता था बड़े मंदिर में. आई टेल यू, जब हंसराज हंस आए थे जिस साल, तो पहले संगत इतनी नहीं होती थी. तो एक बार गुरुजी ने भाटी आंटी को पूछा कि बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था, उसके नेक्स्ट डे पूछा, वो मेरे सामने की बात है, तो उन्होंने कहा कल कितनी संगत आई थी. और गुरुजी ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ एक अप्रोक्सीमेट नंबर बताया जो 1000-2000 रहा होगा. उस समय इससे ज्यादा संगत नहीं होती थी. एंड गुरुजी स्माइल्ड एंड सेड, उन्होंने एक बहुत ह्यूज नंबर लैक्स में बताया कि नहीं इतनी संगत थी. तो गुरुजी काउंटेड ऑल द गॉड्स एंड गॉडेसेस फ्रॉम हेवन जो गुरुजी के मंदिर में आते हैं गुरुजी की संगत बन के, उनको भी. एंड ऑल्सो एक बार यही हुआ था, गुरुजी के बर्थडे में बहुत सेलिब्रेशन होता था. तो हम लोग भी सेवा में रहते थे, तो
मेरा फेवरेट काम था गमले पेंटिंग करना गुरुजी के मंदिर में, क्योंकि मुझे बहुत बहुत पसंद था वो काम, वो सेवा। तो जब गुरुजी का बर्थडे होता था और मैं देखती थी सुंदर सुंदर गमले वो रंगे हुए हैं, उसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। दैट्स लाइक यू नो माय बिट ऑफ सेवा गुरुजी हैज टेकन फ्रॉम मी। तो उस साल हंसराज हंस परफॉर्म कर रहे थे और हंसराज हंस ने बहुत सुंदर परफॉर्मेंस दी गुरुजी के सामने। सच अ ब्यूटीफुल डिवाइन एटमॉस्फेयर, लगता था जैसे धरती पे स्वर्ग है तो यही है। लगता था जैसे बिल्कुल जैसे राम राज्य होता है, कोई जैसे स्वर्ग लोक होता है, कहीं कोई दुख नहीं है, कहीं कोई परेशान नहीं है, सब खुश हैं, सब आनंद में है। वो जो एक आनंद वाली जॉय की फीलिंग होती है, वो गुरुजी के सानिध्य में इतनी ज्यादा होती थी कि हम भूल जाते थे और कुछ भी, कि दुनिया में और कुछ है कहीं। सब कुछ लगता था यहीं पे है और यहाँ से कहीं नहीं जाए अब। तो हंसराज हंस जी आए थे, उन्होंने परफॉर्म किया। सबसे पहली लाइन तो उन्होंने यही बोली कि मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी वाबस्तगी भी जलंधर से ही है। और फिर उन्होंने परफॉर्म किया गुरुजी के लिए। एंड दैट डे इतना बारिश के चांसेस थे, पूरी दिल्ली में काले काले बादल छाए हुए थे। जब हम लोग मंदिर पहुंचे तो वहां पे भी यही था, और सारा इंतजाम खुले में होता था, क्योंकि लंगर प्रसाद उस दिन बुफे जैसा होता था और वो ओपन में होता था सारा। तो संगत कभी आसमान की तरफ देख रही है, कभी नीचे की, अगर बारिश हुई तो क्या होगा। बट गुरुजी हैज कंट्रोल over all the natural forces also. He has control over nature. तो उन्होंने of course वो गुरु जी है, महाशिव हैं, और बड़े मंदिर में एक बूंद पानी की नहीं, और पूरी दिल्ली में जब हम बड़े मंदिर से निकले तो पानी ही पानी था। He can control everything. कितनी बार ऐसा हुआ। और हंसराज हंस ने उस दिन पहला यही परफॉर्मेंस दिया, ये जो सिली सिली आंधी है हवा, तो वो हवा भी जो गुरुजी के आसपास से गुजर रही थी वो इतनी फ्रेग्रेंट होती थी। गुरुजी की जो डिवाइन फ्रेग्रेंस होती थी वो इतनी ज्यादा होती थी, जैसे थाउजेंड्स ऑफ बॉटल्स ऑफ यू नो रोज परफ्यूम किसी स्टेट, जब हम गाड़ी लगा के अंदर की तरफ वॉक करना शुरू करते थे, वहां से आनी शुरू होती थी। कौन सा परफ्यूम ऐसा होगा जिसकी खुशबू इतनी दूर तक फैले। वो गुरुजी की अपनी डिवाइन फ्रेग्रेंस थी। जैसे ही द मोमेंट वी यूज्ड टू एंटर द एम्पायर स्टेट दरबार, लगता था दिस इज लाइक अ डिफरेंट डिमेंशन, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। एक ऐसी दुनिया है जो इस दुनिया में है लेकिन नहीं है, लाइक इट्स अ पीस ऑफ हेवन ऑन अर्थ। वहां पे गुरुजी साक्षात बैठे रहते हैं, महाशिव, और ऐसे लगता है स्वर्ग से देवी देवता सब उतर के उनके आसपास बैठे हुए हैं। इतना सुंदर दरबार। दिस एंड गुरुजी के साथ ये भी था कि गुरुजी लाइक 2 आवर्स तो वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड एकदम मेडिटेशन टाइम होता था, सिर्फ शब्द चलते थे। शब्द को आप ध्यान लगा के सुनिए, सारे आंसर्स आपके शब्द में होते हैं, वो चलते थे। चाय प्रसाद आता था, कभी कभी सेकंड राउंड भी, जिस दिन सोचो कि गुरुजी आज एक और राउंड चाय प्रसाद प्लीज, और पक्का आता था, आई एम टेलिंग यू। एंड फिर गुरुजी की तरफ कभी ऐसे नजर पड़े और आपको लगता था गुरुजी आपको ही देख रहे हैं, एंड कभी वो स्माइल कर देते थे। उनकी नजरें लाइक यू नो सो पावरफुल, उनकी वो जो पावरफुल, इतनी डिवाइन। तो उसके बाद एम्पायर स्टेट में भी यही होता था कि जब शब्द हो जाते थे उसके बाद गुरुजी बड़े जोवियल वाले मूड में आ जाते थे। तो उसके बाद तो फिर शब्द के बाद जैजी भी चल रहा है, और बहुत ही मतलब बिल्कुल पॉप टाइप के पंजाबी गाने भी चलते हैं, पुराने वाले एकदम सुरिंदर कौर एंड प्रकाश कौर के पंजाबी फोक सॉन्ग चलने लगते। और गुरुजी बड़े मतलब एकदम कैजुअल फॉर्म में संगत से आसपास में खूब हंसी मजाक बातें करने लगते। और मेरे सामने उन्होंने एक संगत को पूछा था, आंटी कित्थों आई, एंड शी सेड नोएडा, और नो आइडिया, और सारे हंसने लग पड़े। ऐसे गुरुजी हंसाते रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि हम लोगों ने एक गुरुजी की कृपा से 1 महीने या 2 महीने बाद एक गाड़ी लिया, और न्यू कार थी। तो मेरे अंकल, उस टाइम पे ज्यादा संगत इतनी तो नहीं होती थी कि, तो हम लोग थोड़ा लिबर्टी ले लेते थे, और गुरुजी के पास जाके उनके चरण छुए, और अंकल ने चाबियां गुरुजी के चरणों में रख दी ब्लेस होने के लिए, ब्लेस करने के लिए गुरुजी को। एंड गुरुजी ने अंकल को देखा और बड़े प्यार से बोलते हैं, ओए गड्डी ले ली, सानू भी ले ले। सो दोज आर सच प्रेशियस मोमेंट्स विद गुरुजी, like it's for lifetime, not only for this lifetime but for every life. So Guruji, thank you so much for keeping us under your sharan. आपकी शरण में है, इससे ज्यादा और कोई खुशकिस्मती की बात नहीं हो सकती। Like God and Guruji, they are synonymous to me.
So God doesn't call the worthy ones. He calls you and makes you worthy. जय गुरु जी, थैंक यू सो मच आंटी। मैं रीता गुलाटी आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और गुरु जी के सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी के मेरे को फिर आपने मौका दिया बोलने का। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट, सो ऑनर्ड। अब ब्लेसिंग्स तो गुरु जी की बहुत है, छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे सत्संग है, मुझे समझ नहीं आती मैं कहाँ से शुरू करूं। तो एक्चुअली मैं जब गुरु जी से पहली दफा मिली थी तो मेरी मासी और उनके बेटे के थ्रू मिली थी। तो मैं आज अपनी मासी का सत्संग एक सुनाती हूँ आप सबको। उनको ना बड़ी दर्दें रहती थी, बहुत बुरी तरह पूरी बॉडी में दर्दें होती थी। तो वो गुरुजी के पास, मतलब काफी क्लोज थे वो लोग गुरुजी से। तो एक दिन गुरुजी ने उनको एक पार्टी पे इनवाइट किया ही, पता नहीं किसके घर में, व्हेन ही वाज इन ग्रेटर कैलाश, किसी के घर में पार्टी थी। तो ही टोल्ड माय मासी के आ जाना उस पार्टी पे। तो मैं मासी से, गुरुजी मैं तो किसी ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ नहीं होते, ਮੈਨੂੰ इनवाइट भी नहीं ਕੀਤਾ ਤੇ मैं किस तरह आ जा। तो इसे तो ठीक होना है कि नहीं होना। सो मासी से यस ठीक तो होना ही है। देन गुरुजी से फिर तू आ जाई बस, मैं कह देते तू उत्थे आ जाई। I believe he used to take all his sangat along wherever he used to go, parties and all. So my Masi and her son went to that party. It was a very big affair. And like Guruji had told her कि तू उत्थे आ जाई, मैं तेनू पैग पिलाना है। मासी says गुरुजी मैं ते कदी पींदी नहीं, मैं कदी शराब नू हथ नहीं लाया, ते मैं किस तरह पियांगी। So Guruji says नहीं, अगर तू ठीक होना है ते फिर तू पैग पिएंगी। So I believe she went there and he himself made a peg of whiskey for her and gave it to her and he says, Gatak ja. So again, Masi was hesitant, okay, how do I do it? I have never drunk in my life. But he insisted, कि नहीं तू बस ठीक होना है ते gatak ja. And then she had it. And believe me, Sangat ji, from the next day, all her pains disappeared. Like it was like a medicine for her. And this was one of the things she had told me later on. In fact, when I met Guruji, I never used to hear anything much about Guruji from my cousin and my aunt. So I never got connected. I got connected after 25 years of meeting Guruji. So like there are lots of things, small things happened when we used to go to the temple. I used to go every Monday and every Thursday, and my daughter had started going with me on every Monday. So the first day we went, I'd gone to the washroom and she was waiting outside. And one lady came. My daughter never saw her face. She just came, she took my daughter's hand, opened her like hand and kept something in her mutti, closed it and went off. So my daughter turned around to thank her and see what she'd put in her hand, but that lady had disappeared. All my daughter remembers is she was wearing a green suit, but Mama, I didn't see her face. And it turned out to be a green bracelet with Jai Guruji written all over it. So then all the Sevadars standing there told her this was Guruji himself who had come to bless you. So that way lots of things happened, like small things, which I now realize were blessings from Guruji. Every time I've ever been in need of anything or been a little dejected, I know that Guruji was always there behind me. Even when I had not started going to the temple, good things kept happening after meeting him. I think for today this is enough. कि बहुत बहुत शुक्राना उन्होंने जो दिता है बहुत दिता है और बहुत हेल्प कर देने, हर वेले ख्याल रख देने और सारे आंदा ही मेरे पूरे परिवार दा। हाले कि my elder daughter is not connected at all. The younger one believes in him, elder one doesn't. पर फिर भी सब दा उन्होंने ख्याल रखा। Thank you so much.